Hello students, today I will teach you chapter the flower. In this chapter we study about parts of flower, pollination, fertilization, parts of fruits, types of fruits, seeds and its structure and germination of seeds. Firstly, flower. So what is this flower? Look at the screen, the parts of flower given here and diagram of flower also, flower and the label and diagram. So what are the flower? The flower are the reproductive part of the flowering plant. A flower is a special part of the flower plant, and flower are also called the bloom or blossom of a part, or we can say that it is inside the part of the flower that has petal are the parts which produce pollen and seed. Plants are majorly classified on the basis of presence or absence of flower into flowering and non-flowering plant. A flower is a characteristic feature of flowering plant. It actually an extension of the shoot meant for reproduction. Okay, flower are what? Flower are attractive and appear in different color and shape to attract a pollinator who help in pollen transfer. Okay, so look at the screen, different parts of flower here. Look at the petal that help in the pollination, that attract different insect. Okay, now anther filament. Anther and filament is the male reproductive part, that is called stamen, and stigma, style, pollen tube, ovary and ovule. These are the female reproductive part, or it combinedly called carpel. Okay, last sepal. The lower part of the flower is called sepal, receptacle and stem. Okay, now parts of flower. Although flower differ in shape and size, the anatomy of flower is usually the same. Anatomy is usually same होता है. उसके 4 main part होते हैं: sepal, petal, stamen and carpel. Look at the figure here. The 4 main part, and then that part divide into different part. Sepal, that is the bottom part of the flower that protect the flower bud. Sepal, petals are colorful and attractive part. Carpel, the female reproductive part, and stamen, male reproductive part. The important 4 part, and these parts are arranged in circular fusion to form a whorl or circular arrangement. Or a flower that has all 4 parts is called complete flower, जिसमें ये पूरे चारों पार्ट होते हैं, that is called complete flower. एंड जिसमें ये चारों पार्ट नहीं होते, एक या एक से 2 होते हैं, 3 होते हैं, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं. ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन हियर. Little description about the 4 part: petal, carpel, sepal and stamen. Firstly, petal are what? Petal are the as you all know that petal are the colorful and attractive part that attract the pollinator or insect, that also protect the inner reproductive structure of flower. petal जो है ऊपर की जो पंखुड़ियाँ बोलते हैं हम, वो होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव और कलरफुल होते हैं, और ये इनर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फ्लावर के इनर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, कार्पल इज़ व्हाट? कार्पल आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसको फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को जो इनर मोस्ट होता है, इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं. इसके अंदर ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा आता है. तो सो व्हाट आर द स्टिग्मा? तो स्टिग्मा इज़ व्हाट? द स्टिकी सरफेस ऑफ द स्टिग्मा हेल्प टू कैप्चर pollen grain, जिस पे pollen grain होता है, और स्टिकी फ्लैट स्टिकी सरफेस, दैट इज स्टिग्मा. Okay, now come to the stamen. तो stamen is a male reproductive part. ये male reproductive part होता है जिसको एंड्रोशियम बोला जाता है, और ये एंथर और pollen grain से कंबाइन होता है. और सेपल, व्हाट इज़ दैट सेपल?
जो फ्लावर बर्ड होते हैं कवर्ड बाय ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल डेट प्रोटेक्ट द बर्ड. नीचे की तरफ जो होता है डेट ऑल्सो कॉल्ड कैलेक्स. ओके, नाउ next topic is pollination. So what is this pollination? Look at the screen all of you. Now this pollination is the process by which pollen grain from an anther का जो pollen grain है वो male portion of the flower जो रहता है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल पोर्शन में, इज़ नोन एज फ्लावर, नोन एज स्टिग्मा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलन ग्रेन. तो पॉलिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट लेड इन क्रिएशन ऑफ न्यू. इस पॉलिनेशन के कारण ही न्यू प्लांट्स का ग्रो होता है. सो पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द स्टेमन टू अ पिस्टल. और पॉलिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. किस सीड्स के प्रोडक्शन से पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है. और यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए कि हाउ डज प्लांट गेट पॉलिनेटेड और व्हाट अबाउट प्लांट दैट डज हैव फ्लावर. ओके, तो व्हाट अबाउट प्लांट दैट डजंट हैव फ्लावर. ऐसे प्लांट्स का क्या होता है जिसमें फ्लावर नहीं होता. तो यहाँ पे आप देख लेंगे आंसर. और to be pollinate, pollen must be moved from the stamen to the stigma. When pollen from a plant stamen is transferred, जब pollen जो है ट्रांसफ़र होता है फीमेल पार्ट स्टिग्मा के फीमेल पार्ट में, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. 2 टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, देन उसको एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जो एक स्टेमन दूसरे स्टिग्मा के में एंटर करता है, डेट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर के. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट आर दिस फर्टिलाइजेशन? Plant fertilization, the process of fusion of a female gamete, the ovum or egg, and the male gamete produced in the pollen tube. ठीक है, जब फ्यूज़न होता है एग और मेल गैमेट का, मतलब फीमेल और मैन गैमेट का, तो एक जाइगोट फॉर्म होता है, डेट इज़ कॉल्ड fertilization process. तो fertilization process is a sexual reproduction in plant which occur after pollination and germination. Now we can say that fertilization can be defined as the fusion of male and female gamete. तो male gamete is what? Pollen, and female gamete is called ovum. Okay, और ये जब fuse होता है तो एक zygote form करता है. Okay, the complete series of the process take place in the zygote to develop into a seed. Zygote से seed में change होने के लिए complete process लगता है. In the fertilization process, flower play an significant role as they are reproductive structure of angiosperm, that is flowering plant. Okay, then the method of fertilization in a plant occur when gametes जो हैं वो fuse होते हैं, तब then we can say that the fertilization process completed. Okay, now what is the process of fruit formation after pollination and fertilization? Carpel, जो pollination और fertilization के बाद जो carpel develop into the fruit tissue we eat, जो हम खाते हैं, that is ovary, and जो उसका seed होता है, that is ovule. pollen जो pollination और fertilization के बाद जो उसका carpel होता है वो उसके फ्रूट्स में फ्रूट टिश्यू में डेवलप हो जाता है. और जो फ्रूट टिश्यू मीन्स क्या हम खाते हैं, तो उसकी ओरी और वो फ्रूट की जो सीड्स होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ओव्यूल. और फ्रूट डेवलप इज़ इंटेंटेड बाय ग्रोथ रेगुलेटिंग. कैसे ये फ्रूट में चेंज होते हैं? बाय रेगुलेटिंग हार्मोन्स. फ्लावर विथ 1 कार्पल ओनली रिक्वायर फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 of the 2 ओव्यूल टू प्रोड्यूस फ्रूट्स. ओके, नाउ what is the process of seed formation? That is पहले हम लोगों ने बताया कि फ्रूट्स फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है. फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बाद जो हम खाते हैं वो ओवरी, और उसके सीड्स जो फ्रूट्स खाते हैं वो ओवरी होता है, और उसके जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल होता है. नाउ सीड्स क्या होते हैं? तो सीड्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो सीड्स इज़ एन स्मॉल एम्ब्रॉनिक प्लांट enclosed in a seed coat, usually with some store food, and it is formed when the fertilized ovule. तो पहले ही मैं बता चुकी, जो
फ्लावर के जो ओव्यूल होते हैं डेट इज़ the seeds of the fruits. And fertilization is a process of fusion of male gamete and female gamete to form a zygote. Okay, now come to the parts of fruits. तो पार्ट्स ऑफ फ्रूट में 2 मेन पार्ट होते हैं, एक पेरिकेप उसका आउटर पार्ट होता है और सेकेंडरी पार्ट होता है उसके सीड्स. ओके, टाइप्स ऑफ fruit. Fruit may be classified into 3 category. 3 मेजर कैटेगरी, डेट इज़ सिंपल फ्रूट होता है कि एक एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट होता है. तो सिंपल फ्रूट में 1 फ्रूट हैज़ डेट हैज़ डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर. सिंपल फ्रूट में बी आइदर फ्लैशी और पल्पी और पीची. ओके, नाउ दिस इज द पार्ट्स ऑफ सीड विथ फंक्शन. तो दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ सीड. एंडोस्पर्म सीड के पार्ट होते हैं जो उसका आउटर मोस्ट होता है. एंडोस्पर्म सीड कोड होता है उससे सबसे आउटर मोस्ट, और एक अंदर का जो होता है उसका एम्ब्रॉयो होता है जिसमें न्यू प्लांट डेवलप होता है जिससे. ओके, और जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है, फूड स्टोर करता है. यहाँ पे मोनोकॉट सीड का भी डायग्राम विथ लेबल है एंड डाइकॉट का भी डायग्राम विथ लेबल है. एंड डाइकॉट टेस्टा एंड टेगमेंट होते हैं, प्यूमिल्स होता है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल होते हैं, रेडिकल्स होता है और कॉटिलेडन होता है. नाउ कम टू द सीड स्ट्रक्चर. तो व्हाट आर दिस सीड स्ट्रक्चर. तो सीड स्ट्रक्चर, तो आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज सीड कोट. ठीक है, पहले ही डायग्राम में मैं बता चुकी हूँ. आउटर कवर होता है, सीड कोट होता है, सीड कोट के बाद एंडोस्पर्म होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, उसके बाद एम्ब्रॉयो होता है. ओके, ये मोनोकॉट में होता है और डाइकॉट में थोड़ा डिफरेंट होता है. इसमें जो फूड स्टोर होता है वो कॉटिलेडन में होता है, रेडिकल के जो नीचे है. तो सीड स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे. तो द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज सीड कोट एंड सीड कोट कैन बी थिन एंड सॉफ्टन एज इन द बीन्स एंड हार्ड एज द लोकस्ट और कोकोनट सीड में होता है. तो उसमें एंडोस्पर्म ए टेम्परेरी फूड सप्लाई इज पैक्ड अराउंड द embryo in the form of the special leaf called cotyledon. cotyledon जो मैंने बताया उसमें भी seed leaves भी कह सकते हैं उसको, और ये जो है temporary food supplier होता है. Now come to the germination of seed. So what is this germination? First you look at the screen. In this screen first this is the this first diagram of in first that is radicle है ना. रेडिकल, एंड जो रेडिकल होता है वो रूट डेवलप करता है. जो प्यूमिल होता है वो जो सीड का पार्ट होता है. रेडिकल और प्यूमिल हम इसमें देखेंगे. ये इस सीड पे देखें, डाइकॉट सीड पे. तो डाइकॉट सीड में एक रेडिकल दिख रहा है नीचे की तरफ और एक प्यूमिल दिख रहा है ऊपर की तरफ. दैट रेडिकल ग्रो इनटू रूट पार्ट एंड प्यूमिल ग्रो इनटू शूट पार्ट. ओके, तो इसमें देखो कॉटिलेडन है. तो कॉटिलेडन का काम मैंने बताया वो क्या करता है, टेम्परेरी फूड सप्लायर होता है. ओके, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फूड सीड जर्मिनेशन. तो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है सीड कोट पहले ब्रेक डाउन होता है और पहले रेडिकल डेवलप होता है, फिर रेडिकल फिर ऊपर की तरफ रेडिकल डेवलप हो जाता है, उसके प्राइमरी रूट्स फॉर्म हो जाते हैं. उसके बाद वो अबोव द ग्राउंड आता है और उसमें भी टाइप्स होते हैं. कितने 2 टाइप्स के जर्मिनेशन होते हैं, एपी कॉटिलेडन और डाई कॉटिलेडन होते हैं. तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर पहले आप लोग देख लो. फिर जो प्यूमिल होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है और वो सूट पार्ट में ग्रो होता है. ओके, नाउ फैक्टर डेट अफेक्ट द सीड जर्मिनेशन. किस तरह से फैक्टर है, तो वाटर सप्लाई, टेम्परेचर और हाउ द ऑक्सीजन सप्लाई है ना. ये जो कुछ फैक्टर्स है डेट अफेक्ट द सीड जनरेशन. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीड जनरेशन. सीड जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सीड्स develop into new plant when water is plentiful. Seed filled with water in the process of imbitation. एक प्रोसेस होता है imbitation जिसमें जो है सीड के अंदर पूरा पानी जो वाटर है वो उसको सोख लेता है. एंड वाटर एक्टिवेटेड स्पेशली प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम एंड डेट बिगिन द प्रोसेस ऑफ डेट. वाटर जो है प्रोटीन को, एक एंजाइम है उसके अंदर प्रोटीन जिसको एक्टिवेट करता है और सीड ग्रोथ का प्रोसेस
स्टार्ट हो जाता है. फर्स्ट द सीड ग्रो टू रूट. पहले मैंने जैसे इस डायग्राम में बताया गया कि सीड पहले रेडिकल्स डेवलप होता है, फिर रूट डेवलप होता है, फिर प्यूमिल डेवलप होता है अंडरग्राउंड में. ठीक है, तो ये 5 टाइप के जर्मिनेशन स्टेप्स होते हैं. तो वो इम्बिटेट है ना. तो इम्बिटेट में मैंने अभी बताया क्या होता है, जो पानी जो है वाटर उसको पूरा जो सीड जो है वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है. देन रेस्पिरेशन होता है, अफेक्ट ऑफ लाइट ऑन सीड किस तरह से अफेक्ट है, लाइट ऑन सीड जर्मिनेशन. देन मोबिलाइजेशन ऑफ रिवर्स ड्यूरिंग, किस तरह से मूव हो रहा है, उसको जगह मिल रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ग्रो होने में, तो मूव हो रहा है. मोबिलाइजेशन मतलब मूव. सीड जर्मिनेशन एंड रोल ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो, किस तरह से उसका एम्ब्रॉयो डेवलप हो रहा है, एक्सेस इनटू द सीडलिंग. ओके, नाउ in this video I cover the different topic like parts of flower, pollination, fertilization, parts of fruits, type of fruits, seeds, structure and germination of seed. Now regarding this chapter you have any doubt, please ask me. Thank you.